2004 under the aegis of Rohini Educational Society, founded in 1983, GIBS stands as a symbol of quality education, innovation, and leadership. As a self-financing ISO certified and NAAC A grade accredited institution, GIBS is affiliated with Guru Gobind Singh Indraprasth University, Delhi, and approved by All India Council for Technical Education and the Bar Council of India. The institute offers a diverse range of programs including MBA, MBA International Business, MBA Integrated, LLM, BBA Honours and Integrated BLLB Honours and BBLLB Honours, with a strong focus on academic rigor, research and professional excellence. GIBS has been consistently recognized for its quality standards, having been rated A+ by the State Fee Regulatory Committee of the Government of NCT of Delhi, graded A by NAAC in its third cycle and awarded the highest grading A by the Joint Inspection Committee of the Government of NCT of Delhi and GGI SIP University for over a decade. It has also been ranked among the most top business schools in India, including the Times B School Survey 2023. In alignment with its vision to nurture future-ready professionals, the change makers, GIBS established its Union Innovation Council, Institutions Innovation Council IIC in 2021 under the Ministry of Education Innovation Cell. The IIC serves as a vibrant platform to promote innovation, entrepreneurship, and startup culture among the students and faculty through structured MIC calendar activities, industry collaborations, incubation center visits, mentoring support, and creative competitions. Through these initiatives, GIBS continues to empower youth minds with the skills, mindset, and confidence required to transform ideas into impactful ventures and contribute meaningfully to the nation's innovation and startup of ecosystem. Moving ahead, we are privileged to have with us today a highly accomplished professional, Ms. Jyoti Chauhan, a renowned expert in intellectual property rights and the founder and managing partner of Golden IP Services. Ms. Chauhan is a registered patent agent and trademark agent with over 16 years of extensive professional experience in the field of patents, trademarks, and strategic IP management. With an academic background of Masters in Organic Chemistry and advanced training in intellectual property laws, she brings together strong technical expertise and legal acumen. Over the course of her distinguished career, she has worked with multinational corporations, government institutions, startups, research organizations, and academic bodies, assisting them in protecting, managing, and commercializing the intellectual assets. Her professional engagement include working with reputed organizations such as Indian Oil Corporation, CSIR, Abbott Healthcare, Jubilant, L'Oreal, HCL, Ericsson, Panasonic, GE Healthcare, Daawat, and several others. Her areas of specialization include patent prosecution, freedom to operate analysis, infringement and invalidity studies, patent landscaping, white space analysis, IP audits, and patent portfolio management, particularly across the sectors as of pharmaceuticals, life sciences, organic chemistry, engineering, and emerging technologies. Beyond professional practice, Ms. Chauhan has played a pivotal role in mentoring startups, innovators, scientists, and entrepreneurs, closely working with initiatives related to MSMEs, Startup India, National IPR Council, thereby contributing to India's innovation-driven growth. She has also been associated with the industry and policy bodies such as WICCI, ASSOCHAM, and national forums working towards the strengthening of intellectual property awareness and enforcement. Her contributions to the field have been widely recognized as both national and international levels. She has received several prestigious awards and honors, including recognition by the World Intellectual Property Forum, the National Commission for Women, Women Economic Forum, and various international IP organizations.
which have acknowledged her as one of the most influential and leading women in the field of intellectual property rights. Ms. Chauhan is also a highly respected speaker and panelist, having delivered lectures, training programs, and awareness sessions in the Indian Patent Office, RGNIITM, Delhi University, Amity University, Sharda University, NITs, and numerous national and international conferences and global IP conventions. Through these engagements, she has consistently worked towards building capacity and awareness in the intellectual property law and management. With a vast experience, deep knowledge, and unwavering commitment to the promoting of innovation and intellectual property protection, we are confident that today's session will be both insightful and enriching for all of us. To welcome the esteemed guests, I invite Professor Ramandeep Kaur Ma'am. Thank you, ma'am, for the warm and thoughtful gesture. Now it's time to hear our expert speaker, Ms. Jyoti Chauhan, ma'am, who will enlighten us on the topic Basics of Intellectual Property Rights for Innovators and Entrepreneurs. Ma'am, we are eager to learn from your wisdom and experience. Please grace the audience. Hello everyone, so it is my pleasure to be with you, and I am thankful to the management of this institute to invite me. So for IPR it has been around more than 16 years, and this is my passion when I started, that I should link with innovation, intellectual property, how the research innovation, daily new type of innovation we see, new advancement. So that is very interesting for me, and I hope this will be an interesting and not a boring session for you, because I will try to cover each and everything in a very simpler manner. So in LLB, your one of the part one exam is there in third semester, 6, 8, 7 and 8. Yeah. So it will be helpful for those who are in entering into that phase. So let's we will not explain. So any of you can tell that what is IP? Intellectual, that's the full form. Like when you entered the room, then what was your thoughts in your mind? That what is IP? Human money. Yes. Or Creation of human mind. No. How you can create the human mind? You will create something from your human mind. So what? इसको execution Idea. F5. So our session is IPR, patent filing, importance in academic and research scholars and for innovators and entrepreneurs. So my question was that what is IPR? When you entered the session, so what was the thought in the mind? IPR क्या होगा? मतलब you are comfortable in both the language or I should speak only the English for English. both? Okay. मतलब कई बार तो साउथ से जो understand हाँ बताओ
हाँ, IPR का क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी जो कि हमारे ह्यूमन माइंड से आई, यही समझ रहे हो ना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। और राइट्स क्या होते हैं? जो कि हमें राइट मिल गए इस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को बनाने के लिए कि मैंने कुछ किया है, अपने ह्यूमन माइंड से कुछ क्रिएट किया है। सपोज मेरा ये लोगो है, ये ABS का लोगो है, तो ये उठा के कोई, मतलब मैं नोएडा में कोई यूज कर सकता है, तो मैं उसे कैसे रोकूं? मेरे पास कोई राइट होना चाहिए ना, लीगल राइट होना चाहिए, तभी तो मैं उसको बोलूंगी कि नहीं हमारे यहाँ क्या है, हाउ यू यूजिंग इट। तो वो लीगल में जाके मैं कोर्ट में केस कर सकती हूँ, वो होता है। अब हम प्लॉट लेते हैं, ठीक है, कोई हम बाय करते हैं प्रॉपर्टी, तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है? टोकन लेना, रजिस्ट्रेशन क्यों कराते हैं? छोड़ दो, पैसे दे दिए हमने किसी को और फिर उसको फॉरगेट कर सकते हैं? नहीं ना, राइट को सेल करता है, आज से हमारा ये मकान है, ऐसा रहता है। इसी तरह सेम चीज जो हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में होती है, ठीक है, हमारे उसमें भी हम राइट दे रहे हैं उसको। हम अगर हमारा वर्क, ये मैंने कॉपीराइट कर दिया, उसका सिंबल है, ये मेरा प्रोफाइल है। पेटेंट हो सकता है, कॉपीराइट हो सकता है, डिजाइन्स हो सकते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी हो सकता है, ट्रेड सीक्रेट होता है, और ये सारी चीजें जो है हमारे इसमें IPR में आएंगी, जो आज हम कवर करेंगे। अब उसमें क्या होता है, अब ये पेटेंट हमारा किस चीज के लिए, कॉपीराइट किसके लिए? क्योंकि कई बार मेरे पास लोगो लेके लोग आ जाते हैं, कहते हैं मुझे इसका पेटेंट करना है, ऐसा है, क्योंकि उनको नहीं पता इसके लिए ट्रेडमार्क होगा, पेटेंट नहीं होगा। पेटेंट किस चीज के लिए होगा? इन्वेंशंस के लिए होगा। कॉपीराइट किस चीज के लिए होगा? वो लिटरेसी वर्क के लिए होगा। तो वो सारी चीजें इससे मैंने बेसिक स्लाइड निकाली हैं आपको। सो अभी ये मैंने पूछा था इंटेलेक्चुअल जो हमारे ह्यूमन माइंड से कुछ ओरिजिनेट हो रहा है। सर ये बहुत अच्छा कांसेप्ट है, इसके लिए पेटेंट करना है। उसने कहा मार्केट वैल्यू कुछ नहीं है, तो क्या करूँगा मैं करके? क्योंकि मुझे कुछ नहीं करना, बस इन्वेंशन कर दिया लोगों ने, R&D एक्सपर्ट हैं और उन लोगों ने अपना रिसर्च की है, बट उसका जो मैं कमर्शियल वैल्यू, क्योंकि आई कैन नॉट सेल इट इनटू द मार्केट, आई कैन नॉट लॉन्च इट इनटू मार्केट, तो लीव इट। तो वो उसका एक कमर्शियल एस्पेक्ट भी होता है कि हम उसको कितना करने वाले हैं, आगे बेचने वाले हैं, वो तो हम उसको अगर कमर्शलाइज कर रहे हैं तो हमारा एस्पेक्ट होता है कि उसको कॉपी ना कर पाए, उसको इन्फ्रिंज ना कर पाए विदाउट माय परमिशन। मेरा कंसेंट लेके यूज कर रहा है, मुझे रॉयल्टी दे रहा है, कुछ दे रहा है, मेरे बीच में कुछ है नेगोशिएशन, लाइसेंसिंग है, एग्रीमेंट है, बहुत सारी चीजें आपने लीगल लॉ पढ़ोगे, तो वो सब चीजें हैं, दैट्स फाइन, बट उसका कोई मिसयूज ना करें मेरी कंडीशंस के बगैर, तो सो हमारा जो पेटेंट है, फर्स्ट एस्पेक्ट, इट इज एन एक्सक्लूसिव राइट गिवन बाय द गवर्नमेंट फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम, 20 इयर्स के। बल्कि मोबाइल होते थे ना पहले, कीपैड वाले होते थे पहले, अब वो कोई नहीं यूज करता, वो सस्ते होते हैं 1-2 हज़ार वाले। अभी सब लोग ये अच्छे वो डालते हैं, क्यों? इनमें इनोवेशन फीचर्स हैं। तो इनोवेशन जो है इनके साथ एक कमर्शियल वैल्यू है, कस्टमर वैल्यू है। तो इनोवेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग एन आइडिया और इन्वेंशन इनटू अ गुड्स और सर्विसेज दैट क्रिएट्स वैल्यू ऑफ फॉर विद द कस्टमर विल। तो एक जो हमारा इन्वेंशन है उसके साथ जो हमारी कमर्शियल वैल्यू हो जाती है लिंक, तो उसको हम बोलते हैं इनोवेशन, जो हम पेटेंट में कंसीडर करते हैं। So to call an innovation, the idea must be replicable at an economic cost and must satisfy a specific need. हमारी एक नीड होनी चाहिए। अब AC के बिना गुजारा नहीं है, AC ना चल रहा हो तो घर में नींद नहीं आती। मतलब मैं भी ऐसे बिगड़े हुए बच्चों में से हूँ, नहीं AC नहीं है तो नींद नहीं आएगी। अब पहले तो करते थे, पहले तो लोग ऐसे नहीं है वो हवा में सो रहे हैं, विलेजेस में करते हैं, बट अब ये नीड हमारी जो कस्टमर नीड आ रही है, इससे हमारे नए इनोवेशन है। और AC में भी इतने फीचर हैं कि लाइट भी नहीं आ रही, अब तो फिर मैं सो नहीं सकती, तो अब वो आ रहे हैं जो इन्वर्टर से फिटेड है, वो एक नीड है। तो ये सब हमारे इनोवेशन है और इनको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। और प्रोटेक्शन का क्या टूल है? IPR। So almost all products follow a life cycle curve having a characteristic shape. A company does not continue to introduce new product periodically or at least significant improvements on existing product and processes. So it will be eventually going out of business curve. ऐसी कुछ कंपनी है जो आप देख रहे हो बंद हो जाती है, क्योंकि उनके जो कंपटीटर हैं वो नए इनोवेशंस ला रहे हैं। हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, हम बना रहे हैं कोई चीज, बट हम ये देखते हैं कि और दूसरी कंपनीज क्या इनोवेशन कर रही हैं। अगर कोई अच्छे से इनोवेशन नहीं लेके आ रही है तो जो कस्टमर आ रहा है, हमारे ऑटोमोटिव के लिए मारुति हमारा जैसे कस्टमर है, या होंडा थी, या GSK में थी, मैं तो GlaxoSmithKline, हम नई नई चीजें ला रहे हैं, तो वो हम चल रहे हैं।
IPR to induce innovation of various kinds. IPR generally designed to exclude others from using your firm's ideas and अब ट्रेड सीक्रेट क्या होता है बताओ? Undisclosed information. ये तो लिखा है जो अभी आने वाला है उसको बताओ। ऐसी मतलब समझ क्या है? लाइक कुछ ऐसी डील्स होती है जो डिस्क्लोज नहीं की जाती कि हम आपको ये शेयर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ बड़ी इंडस्ट्रीज बेसिकली यूज करती हैं जस्ट लाइक डिफेंस सेक्टर हो गया या फिर कोई ऐसी कंपनी डिफेंस सेक्टर भी है बट हम एक शॉप में जाते हैं लड़कियों का बता रही हूँ लड़के भी मुझे पता है कि गोलगप्पे बहुत पसंद होते हैं बट उन्हें वहीं से पसंद है ठीक है क्योंकि वो ऐसा बनाता है उसकी चटनी ऐसी है कोई शॉप होती है चाट वाली जो लोकल स्ट्रीट वाले होते हैं चांदनी चौक में दही बल्ले वाला है पराठे वाली गली है हाँ ठीक है वो कैसे बना रहा है वो दूसरा कोई बना ही नहीं रहा उसने कहीं कुछ फाइल नहीं करा हमें पता ही नहीं कैसे बनाया तो वो क्या है वो ट्रेड सीक्रेट है क्योंकि उसके कंपटीटर को बताएगा नहीं दूसरी स्टेट में भी खोल देगा अब होता क्या है कि उसका कोई सर्वेंट है वो जाके दूसरी जगह कर सकता है तो उसको राइट नहीं है कोर्ट में तो कोई कुछ कर नहीं पर वो सीक्रेट है तो ट्रेड सीक्रेट क्या हुआ ट्रेड सीक्रेट इज रेफर टू कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जो मेरे पास है क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन दैट कैन बी फार्मूला दैट कैन बी प्रैक्टिस अ प्रोसेस डिजाइन instrument pattern or combination of information which is not generally known and not uncertain as I said it is a powerful tool by which business can get an economic advantage over the computer ठीक है ना मैंने क्यों सीक्रेट रखा है ये मैं सबको बता सकती हूँ ना मैं इसमें कितना दही डाल रही हूँ है ना वो जो चीज कर रहा है उसको पता है उसके सर्वेंट को पता है बट किसी दूसरी शॉप वाले को नहीं पता जैसे ये फार्मूला है हमारा KFC का फार्मूला किसी को नहीं पता कोका कोला के जो फार्मूले है उसमें जैसे कोका कोला बना रहे हैं और जो टेस्ट आ रहा है उसमें क्या है लॉ कर रहे हैं लॉकर ए में ये फार्मूला है बी में ये है सी में ये जो कंपनी ओनर है उसको भी नहीं पता एग्जैक्टली क्योंकि उसने उनको बताया ही नहीं है उसने ये लॉकर फिट कर रखे हैं फार्मूला ए को मैन्युफैक्चर है जो बना रहे हैं फार्मूला को उसमें ए में डाला बी डाला प्रोडक्ट सी डाला ऐसे डाला अब ट्रेड सीक्रेट में पेटेंट में डिफरेंस क्या होगा बताओ पेटेंट को हम क्या कर रहे हैं रजिस्टर कर रहे हैं फाइल कर रहे हैं बट ट्रेड सीक्रेट को हम कहीं भी फाइल नहीं कर रहे हैं मेरा फार्मूला है मेरे पास है ना तो इसके एडवांटेज क्या होते हैं कि ट्रेड सीक्रेट कहीं फाइल नहीं हो रहा तो उसका अनलिमिटेड टाइम प्रोटेक्शन है और इंफॉर्मेशन डिस्क्लोजर उसमें देने की जरूरत नहीं है डिसएडवांटेज क्या है मेरा सर्वेंट है जो दही बल्ले की शॉप है नटराज वाले पे है ना वो जाके कहीं और दूसरी शॉप पे जा रहा है और वो बता के बेच रहा है मुझे कुछ कर नहीं सकती मैं क्योंकि मेरे पास लीगल राइट है ही तो हम लीगल राइट में उसको स्यू नहीं कर सकते कोर्ट में अगर वो कुछ करता है अब जीआई क्या होता है बताओ ये होता है अब समझ में आया आप बताओगे कि ये क्या होता है बताओ किसी पर्टिकुलर एरिया या रीजन से फेमस होगी कोई चीज वो होती है हाँ उसका नाम जुड़ा होता है उस एरिया का हाँ तो अब हम जैसे जियोग्राफी को ये जो प्रोडक्ट है ये इंडिकेट कर रहे हैं जियोग्राफी को
These indicate a particular geography. अब कोई अगर कुल्लू शॉल वहाँ जा रहा है तो हम कहेंगे भाई वहाँ की शॉल लेना, कोई अगर वहाँ जा रहा है कोटा तो हम कहेंगे वहाँ साड़ी ले आओ, असम जा रहा है भाई असम से असम की ले आओ, बोलते हैं ना। तिरुपति लड्डू ले आना, इतना बड़ा साइज का लड्डू भी मिलता है हमारे, मतलब अब तो मिलने लग गए हैं जगह जगह, बट वो वाला लड्डू का साइज देखा है कभी तिरुपति से भी आता है तो कोई नहीं गया, इतने लोगों में तो कोई नहीं गया तिरुपति, इतना बड़ा होता है एक लड्डू का, उसमें ड्राई फ्रूट होते हैं, बादाम होता है, इसमें दार्जिलिंग कोई जा रहा था हम बोलते हैं दार्जिलिंग टी ले आना, क्योंकि उस टी में जो टेस्ट है वो कहीं भी नहीं है। अब डिजाइन पेटेंट क्या होते हैं? ये डिजाइन जो होते हैं, डिजाइन की जो शेप होती है, तो आगे आगे जाते हैं। आगे जाते हैं। स्किप कर दो उसी में स्लाइड जियोग्राफिकल इंडिकेशन क्या होता है, जो वहाँ की जियोग्राफी को रिप्रेजेंट करता है। इट इज अ नेम और साइन यूज्ड ऑन सर्टेन प्रोडक्ट विच पॉइंट आउट टू स्पेसिफिक अ रीजन ऑफ प्रोडक्शन, स्पेसिफिक जियोग्राफिकल लोकेशन और, ठीक है ना। So it creates a link between the good and that place. It determines the characteristic quality of the product originated from that place. अब ऐसा पॉसिबल है क्या कि असम टी यहाँ पे ओरिजिनेट हो जाए? लोगों ने कोशिश की लगाने की बात है। हाँ, फार्मर है, सॉइल भी है यहाँ पे, कर सकते हैं क्या? फेवरेबल इन्वायरमेंट नहीं, वो इन्वायरमेंट, वो क्वालिटी, वो जो रेगुलेशन है वो सिर्फ वहीं पर है, उसी प्लेस पे होती है जो उधर का सॉइल है। ये पाएगा ना कि जो उसका सॉइल है वहीं पे जो उसका इन्वायरमेंट है, जो एटमॉस्फेयर है वो वही। So it provides a legal protection to the Indian geographical indicator which is called Muda and it promotes the economic prosperity of producers of good producing geographical territory. ये क्लियर है? अब हमारे डिजाइन क्या होते हैं? जैसे ये डिजाइन है सारे, ये क्या है? ये जो है, अगर हमारा एक बोतल है, इसका जो पर्टिकुलर पैटर्न है, वो इसकी शेप है, वो इसका डिजाइन है, ठीक है? तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? इंडस्ट्रियल डिजाइन के लिए एक डिजाइन होना चाहिए और उसकी जो सिर्फ आउटर शेप है उसको प्रोटेक्शन मिलेगी। ये कैसे बनी है वो प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, उसका मैकेनिकल पार्ट, उसका जो फंक्शनल है वो नहीं मिलेगा प्रोटेक्शन। वो कहाँ मिलेगा? पेटेंट में मिलेगा। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? जो हमारा इंडस्ट्रियल डिजाइन होता है उसको हम कैसे फाइल करेंगे? हमें A4 साइज के पेपर चाहिए, वाइट पेपर, और उसको हम लिखेंगे। फोटोग्राफ हमारे 8 भी होने चाहिए। जैसे मैं जब बिंडा में थी तो 100 से मोर देन 100 डिजाइन पर फाइल चाहिए।
तो वो व्यूज होते हैं, उसकी नोवेल्टी का स्टेटमेंट होता है। मुझसे डिस्कस कर लो। भाई चुप हो जाओ। पावर लाइन 15 मिनट हो गए तो मिला नहीं। सीख लो, आगे काम आएगा। तो ये हमें पूरा डिस्क्लेमर डालना पड़ेगा कि मैंने जो ये आर्टिकल बनाया ये बिल्कुल नोबल है और ये कहीं यूज नहीं हुआ, और हमें सिग्नेचर करना पड़ेगा एजेंट का, जैसे मैं एजेंट हूँ, डेट डाल के रखना पड़ेगा। ये सारी जो फार्मास्यूटिकल हैं ये सब हमारे आईपीआर में कवर्ड है, ये सब फाइल है। जैसे हमारा कैप्सूल का डिजाइन है, जैसे हमारा ये इनहेलर है, ये हमारा सीरीज है, ये सारे जो प्रोडक्ट हैं दीज आर कवर्ड इन डिजाइन। ये मेरी कंपनीज के सिंबल हैं, ये मैकडोनाल्ड, अब ब्रेकफास्ट का टाइम तो चला गया, ये देखते ही ये लोगो दिखता है तो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, मैकडोनाल्ड, है ना? ये पेप्सी, कोका कोला। अगर आपको 2 ड्रिंक ऑफर करे जाएं ग्लास में, ब्राउन कलर के हैं, आप पहचान जाओगे? यस मैम। कैसे पहचान जाओगे? कोका कोला का पेप्सी का कैसे पता करोगे? टेस्ट से ये तो बहुत पीने वाले हो आप। स्कैन मार रहा था वो आपसे। नहीं पर वैसे जो है, मतलब अगर आपको ब्रांडिंग में मिलेगा कोका कोला तो आप पहचान पाओगे ना, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। आदत से मिला बहुत सारे ड्रिंक है, मुझे तो नहीं पता चलता, मतलब ब्राउन ड्रिंक अगर ये जाए पेप्सी, कोका कोला, तो उनको या तो कोई बहुत ज्यादा पीने वाला होगा तो उसको पता चल जाएगा, मुझे नहीं पता चलता। नहीं मैम, पता है। चल जाता है। हाँ, अभी 1000 रुपए की बोतल बेची है कबाड़ी वाले को। हाँ भाई, प्लास्टिक की बोतल बेची है कबाड़ी वाले। एक बोतल नहीं, बहुत सारी। कितनी जमा करके रखी थी? पूरे साल में तो बेचा 1.5 महीने। ओके, लेट्स कम। तो इसी तरह से जो ये मतलब जो उसकी ब्रांडिंग है, अगर हमें इसमें दिया जाएगा ड्रिंक तो हमें ज़्यादा पता चलता है कि वो उसकी ब्रांड का है। इसी तरह गूगल का है, ये जो टीएम लिखा है, मान लीजिए ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहा है, जब आर होता है तो इसका मतलब वो रजिस्टर्ड हो गया, जैसे मैकडोनाल्ड। सो ट्रेडमार्क क्या है? दैट रिप्रेजेंट अ कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। इट कैन बी अ वर्ड, इट कैन बी लोगो, इट कैन बी पिक्चर, सिंबल, डिवाइस और कॉम्बिनेशन ऑफ these। जो किसको दिखाता है? उसके ऑर्गेनाइजेशन को दिखाता है। जैसे आज आपने मुझे कोई लोगो दिया, अभी चेक किया तो वो फाइल करके वो टीएम होगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको 6 महीने बाद मिलेगा या 1 साल बाद या 1.5 साल बाद, फिर डिपेंड हमारा जो ट्रेडमार्क का। तो टीएम मतलब उसको आपने फाइल किया, उसको अंदर ट्रेडमार्क फाइल करा, लोग डर जाएंगे उसका लोगो यूज करते हैं। जैसे ये मैंने एग्जांपल दिया था आपका, इसका फाइल हुआ है ट्रेडमार्क के मिलो। मैम एक डाउट था, इससे पहले जो आपने डिज़ाइन पेटेंट का ये बताया था उसमें यू मेंशन कैप्सूल्स और ये फार्मास्यूटिकल्स, तो उनको प्रोटेक्ट कौन कर रहा है? क्योंकि अलग अलग कंपनी की जो भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वो सब कैप्सूल्स बनाती हैं, तो प्रोटेक्शन किसको मिल रही है? मतलब मुझे वो समझ नहीं आया। कैप्सूल की जो शेप है ना, तो वो शेप जो है वो उस कंपनी की है जिसमें वो पहले फाइल करा, बाद में कोई उसकी कैप्सूल की वो वाली फॉर्म उसका यूज नहीं करता, उसका डायमेंशन और उसमें उस तरह का डिजाइन यूज किया, कलर था वो यूज नहीं करता। तो ट्रेडमार्क इज यूज्ड एज अ मार्केटिंग टूल सो दैट कस्टमर कैन रिकॉग्नाइज द प्रोडक्ट और एंड ऑफ पर्टिकुलर ट्रेडर एंड डिस्टिंग्विश द गुड्स फ्रॉम द अदर ट्रेडर। एक ट्रेडर का दूसरे ट्रेडर से ड्रिंक है लोगों का, पेप्सी कोका कोला, तो कैसे पहचान पाएंगे उसकी ब्रांडिंग। So to register a trademark, the mark should be deceptively होने चाहिए। जैसे आपके विलेजेस में बहुत दिखता है ना, सोप होते हैं विलेज से, ये जो मिलते जुलते नेम्स होते हैं, वो अगर बंदे को पता चलता है कोका कोला, कोका मोला, इस तरह से बहुत ड्रिंक्स जो विलेजेस में चलते रहते हैं, अगर ओरिजिनल बंदे को पता होता है ना, तो वो विलेज वाला जो शॉपकीपर है वो डर जाता है पूरी तरह। एक हुआ था कि कोका कोला वाले ने नोटिस भेजा है, लीगल नोटिस, कि आप कैसे मेरा ये ब्रांड यूज कर रहे हो, इसकी जो मैं आपसे वो ले रहा हूँ पेनल्टी, वो मैं क्लेम करूंगा 1 करोड़ 2,000 और वो आपने तो कोका कोला वाले के वहाँ पहुँच गया कि भाई मैं इतना पैसे दे पाऊंगा, तो उसने कहा आपको पहले से फंड देगा। तो अभी भी वो बात चल रहा है, पैसे तो छोड़ेगा। तो ये बहुत डिस्टिंक्टिव होने चाहिए। कॉपीराइट क्या होता है ये तो पता होगा, बचपन में मूवीज देखते हुए बड़े हुए हैं। हाँ, आर्टिस्टिक वर्क में मिलता है। और पोएम लिखते हैं
है वो कॉपीराइट। और कोई हमने साइंटिफिक आर्टिकल लिखा, मेरे पास है कि इसको हमें पेटेंट करना है, हमारा बिजनेस मेथड है या फिर कुछ, तो मुझे लॉ में ये चीज़ सही नहीं लग रही है, तो मैंने अपना एक आर्टिकल लिखा, मैंने अपनी बुक निकाली LLM स्टूडेंट, तो LLB वालों की लिस्ट निकाली तो उनको हेल्पफुल है, तो उसको कह रहा है कॉपीराइट। जैसे हमारे यहाँ हिंदी चलता है, मेरे यहाँ भी अलग चलते हैं, वो चलते हैं, तो वो कॉपीराइट होते हैं। कॉपीराइट में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कि ऑथर होता है, क्रिएटर हुआ है वर्ड की, एंड आई इंक्लूड राइट टू कॉपी डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अदर ओनली साइन कर सकते हैं। बट अभी ये हुआ था बहुत डिस्ट्रीब्यूट के एजुकेशन में आप जीरोक्स करा लेते हैं, फोटो वगैरह लेते हैं, इट इज अलाउड और नॉट। तो फिर ये हुआ कि आप एजुकेशन पर्पस में अगर यूज कर रहे हो लर्न सोसाइटी में, तो वो अवेलेबल है। तो लिटरेसी इंक्लूड नोवेल्स एंड साइंटिफिक आर्टिकल्स हो सकते हैं, ड्रामाज, मूवीज, पोएट्री, म्यूजिक, एंड आपका जो सॉफ्टवेयर कोड होते हैं उनको आप पेटेंट नहीं करा सकते, तो वो कॉपीराइट में प्रोटेक्शन है। उसका आर्किटेक्चर्स जो होते हैं, डिजाइन जो हम बनाते हैं, वो इतना A3 वाले पेपर पे आर्किटेक्ट होते हैं, किसी के रिलेटिव भी होंगे तो आपने देखा था डिजाइन, तो वो सारे हम कॉपीराइट कराते हैं। हमारे न्यूज मीडिया में अगर हम चाहते हैं कुछ न्यूज़पेपर में कुछ है वो सब हमें कराना है प्रोटेक्ट, तो वो हम कॉपीराइट में करा सकते हैं। तो ये जो है कॉपीराइट ऑफिस की साइट है, अगर आप चाहोगे तो आप ऐसे देख सकते हो, इसमें www.copyright.nic.in, उसमें पूरा आर्टिकल्स आ जाते हैं, पूरा हमारा कॉपीराइट बना डेफिनेशन पूरा कवर किया पीछे। इसका टर्म 20 ईयर है, इसके कुछ क्राइटेरिया है, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लेके आएंगे और बोलोगे कि नहीं मैम ये जो है इन्वेंशन है मैंने बनाया है और इसको हम पेटेंट कराना चाहते हैं। तो उसके लिए हमें 3 क्राइटेरिया होते हैं। पहले हम उसको देखते हैं नोवेल्टी। नोवेल्टी क्या होता है? न्यू। बट न्यू कैसा हम डिफाइन करें? न्यू है, हाँ, एक तो ये हो गया कि किसी ने पहले इन्वेंट नहीं करा। वो कैसे पता करेंगे कि हमारे पेटेंट सब्जेक्ट टूल्स होते हैं जिसमें कि हम पता करते हैं, हमारे डेटाबेस होते हैं, हम उसमें वो कीवर्ड डालेंगे। सपोज हमने एक मैन्युफैक्चरिंग का कुछ प्लांट का कुछ प्लांटेशन वाला मेथड है, तो उसको हमने वहाँ पे डाला प्लांटेशन वगैरह, तो उसके बहुत सारे पेटेंट आएंगे। और मेरे साथ में मैं R&D में इतना टाइम स्पेंड किया, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती थी कि मैडम आप 10 पेटेंट दे दो मुझे और मैं इस पर काम करना चाहता हूँ, मेरा आइडिया है, तो फायदा नहीं है, मैं तो बहुत टाइम उसके लगाऊंगी करने में। तो वो पेटेंट भी आजकल उस तरह में काफ़ी हेल्प करता है। तो स्टिमुलेट न्यू इन्वेंशंस के लिए, यूटिलिटी के लिए और पब्लिक डोमेन में हम 28 की बात क्या होगा, वो पेटेंट पब्लिक यूटिलिटी में आ जाएगा, जो हमारे मेडिसिन में है काफ़ी यूजफुल, कि वो उसका जेनेरिक हो जाती है ड्रग्स एंड फार्मा की, तो वो हम उसको यूज कर सकते हैं आफ्टर द एक्सपायरी। अब हमारे इसके बेनिफिट क्या होते हैं? हम पेटेंट सर्च कर रहे हैं, क्योंकि हम उसे रीइन्वेंट ना कर पाएंगे इसको, और हमें ये पता करना है क्या क्या पेटेंट यूज किया है। तो अगर आपको जैसे पेटेंट कोलैबोरेशन, मनी, फेम, नेम, अब किसी बंदे ने 3 इडियट या फिर सबने देखी होगी, कोई ऐसा है जिसने नहीं देखी? क्या? बहुत अच्छा, सबने देखी हुई है 3 इडियट मूवी। उसमें फुटपाथ के पीछे सब भाग रहे थे। क्यों भाग रहे थे? क्योंकि उसके नाम इतने सारे, कितने पेटेंट थे? 300। बोलते हैं ना कि उसके नाम 300 पेटेंट है। एवरीवन वर्ल्ड क्या होता है? वर्ल्ड उसको चाहता है, वर्ल्ड उसके पीछे है। तो मैं उसके पीछे जाना चाहता हूँ, क्योंकि वो उससे कोलैबोरेशन करना चाहता था, उसके साथ मनी बढ़ेगी। अगर उसके साथ कोलैबोरेशन होगा तो उस पेटेंट को, उस टेक्नोलॉजी पे वो काम कर पाएगा, नेम होगा, फेम होगा, इसलिए उसको चाह रहे थे। तो जो बंदा ज्यादा पेटेंट फाइल करता है उसके पीछे कंपनी होती है। मेरी भी पास्ट कंपनी में एक इन्वेंटर था, हमने उसको खुला ऑफर दिया था कि तुमको जितना चाहिए बताओ, हमारी कंपनी आके ज्वाइन करो। क्यों? उसके नाम 100 पेटेंट थे उस टेक्नोलॉजी में, ईवी में। तो वो हमें आके हमारी कंपनी को गाइड कर सकता है कि इसमें आप ये कर लो, इसमें इतना डाल लो, उतना डाल लो चीजें। और हमारे एक प्लान पे सेट भी हुआ था उसकी नॉलेज से। तो सोचो उसके नाम इतने पेटेंट थे। इसलिए जब तक आप बताओगे नहीं वर्ल्ड को कि मेरे नाम इतने पेटेंट है, मैंने इतने इन्वेंशन किए, वर्ल्ड को कैसे पता चलता है? तो वो एक पब्लिकेशन होती है जो हमारे ऑनलाइन आता है। तो हमारी जो प्रोसेस होती है, हमारी मशीन होती है, जो मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर होता है, और जो हमारी कंपोजिशन ऑफ मैटर जो केमिस्ट्री में है, ड्रग्स में अब तो हम सब लोग बहुत टेक्नोलॉजी, पहले तो ड्रग उठा के डॉक्टर के पास देते थे, अब घर में ही हमें कुछ बीमारी होती है हम दे देते हैं, इसमें क्या है, PCM है, अच्छा इसमें ये है, इसमें वो है, देख लेते हैं ना। तो वो एक कंपोजिशन हम खुद देख लेते हैं, आधे डॉक्टर खुद बन जाते हैं। अब एक मोबाइल में काम कर रहा है, इसमें कितने पेटेंट होंगे अब तक बताओ? गैस मारो,
पेपर थोड़ी है ये, नो नेगेटिव मार्किंग। ये एक मोबाइल है जो हम डेली यूज नहीं करते हैं। आपने सोचा है कि कितने पेटेंट हो सकते हैं? थाउजेंड्स में, हैं? थाउजेंड्स में। सिर्फ 1000? इतने या सारे मैम 3.5 लाख के आसपास तो मोटरोला के पास था जिसको गूगल ने खरीदा था। ठीक है, इसके पास पहुंच गए। कितना है? हैं? ये 2,50,000। सोचा है? जो हम डेली यूज करते हैं, जो कहते हैं कि इतने 2,000 वाले हैं ना मोबाइल, उसमें भी इतने फीचर हैं। जो और ज्यादा अपग्रेडेड है उसमें और ज्यादा, जो हमारे इन फीचर्स के लिए सेंसर, कैमरा, यूजर इंटरफेस, डिजाइन, मेमोरी स्टोरेज, हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, चिपसेट, एप्लीकेशन, डिस्प्ले, एंटीना, नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इतने फीचर हैं जो हम यूज करते हैं। तभी तो सैमसंग अभी और उनके बीच में फाइट हो रही है कि मैं ऐसा यूज कर रहा हूँ, उसमें ये फीचर भी आ गया। तो हमारा जो पेटेंट है वो हम लोगों के लिए कैसे यूज किया? पहले ये है ना, हाँ हमने एक लेक्चर कोई ऐसे तो दिया ही नहीं है। हमारी डेली लाइफ में अब हम लेक्चर अटेंड करने आईपीआर में, तो हमें किस लिए यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं? तो एक तो हमारी टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, जो हमारे पीएचडी स्टूडेंट्स हैं, हमारे हमें पता करना है कि हमें ये चीज़ है, तो हमें पता अपग्रेड करना है अपने आपको, तो वो इंफॉर्मेशन हमें न्यू टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चल रहा है, तो वो हेल्प कर रहा है। प्लस कल को हम कंपनी ज्वाइन करेंगे, हम टॉप लेवल पे पहुंचेंगे, हम लीगल हेड बनेंगे, या हम कुछ भी कंपनी का सीईओ हमें बुला लेता है ना, और वो कहता है मुझे बताओ ये इसमें क्या हो रहा है, तो आपको कि मैं कैसे बताऊं? तो वो क्या होता है कि हमारे जो पेटेंट फाइल करेंगे ना, कोई दूसरी कंपनी क्या कर रही है मुझे बताओ। तो कंपनी अगर कोई कुछ काम कर रही है, मैंने बोला सैमसंग के नाम इतने पेटेंट हैं, वो क्यों है? क्योंकि वो उस पर काम कर रहा है, वो नए नए चिपसेट ला रहा है, नए नए इनोवेशन कर रहा है, और वो इनोवेशन कर रहा है तो वो उसमें फाइल भी करेगा। जो जो एमएनसीज है, हम मानते हैं कि अगर कोई बंदा उसमें काम कर रहा है तो वो उसके नाम क्या करेगा? पेटेंट फाइल करेगा। तो हम उसकी पेटेंट सर्च करते रहते हैं, हमने वॉचेस लगा रखे हैं, पेटेंट वॉच लगा रखे हैं कि वो क्वार्टरली वो क्या क्या कर रहा है हमें पता करना है, हमें अपने आप को अपग्रेड करना है। हम नहीं करेंगे तो हमसे कौन खरीदेगा? तो एक तो ये है बिजनेस इकोनॉमी की इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है, उसके बिब्लियोग्राफिक डेटा से लीगल इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है, यहाँ पे सब लॉयर्स हैं, हमें पता करना है क्लेम्स क्या करेगा, उसका स्टेटस क्या है। हम अगर उस टेक्नोलॉजी में एंटर करते हैं, आप लोग लीगल एडवाइजर हो, कल को हमारे लीगल एडवाइजर थे, मुझे भी बुलाते थे लोग एज ए लीगल, जो मुझे सीईओ बुलाते थे कि बताओ ये वाली टेक्नोलॉजी है, इसमें हम एंटर कर सकते हैं नहीं, तो मैं कहती थी पेटेंट एक बार देख लेते, उसने क्या क्या क्लेम करा है वो हम एक बार चेक करते हैं। तो हमारा एक पेटेंट लैंडस्केप होता है इस चीज के लिए, जो टूल है उसमें हमें बहुत सारे ग्राफ्स होते हैं क्योंकि हमें ये इन्फॉर्मेशन देते हैं कि उसमें कौन से न्यू कमर्स हैं, उसमें हमें पता करना है कि इनोवेशंस क्या हो रही है, वो कंपनी क्या कर रही है, वो किसका कोलैबोरेशन किसके साथ है, या मुझे अगर ईवी को लॉन्च करना है मार्केट में तो मेरा मार्केट कहाँ है? आप लोगों को पता है ना वो कंट्री जहाँ पे ईवी का काम बहुत ज्यादा हो रहा है वर्ल्ड में, बताओ? चाइना। क्यों? क्योंकि उसके नाम इतने बड़े, चाइना में तो हर एक चीज का मतलब, मैं वहाँ भी सोच रही थी ना, जब मैं पास्ट कंपनी में थी गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स में, मैं सोच रही थी ईवी में ये कर दो, देखा पेटेंट कर इसमें ये भी करा हुआ है, उसने वो भी करा हुआ, उसका हमारे लिए कोई पोल ही नहीं छोड़ा कि हम जहाँ जाके एंटर करें, तभी जाके हमने इस बंदे को पकड़ा था जिसके नाम 100 पेटेंट थे, और उसको कोशिश की थी, तब उसने कुछ बताया कि हाँ इधर कर सकते हो, क्योंकि हमें तो अभी व्हीकल्स बेचने हैं। इस तरह के ग्राफ होते हैं। अब मेरे सीईओ ने मुझे बोला कि 10 मिनट में आओ, मुझे कुछ पेटेंट की मीटिंग है, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन पूछनी है कि मुझे किससे कोलैबोरेशन करना है, किस इन्वेंटर को पूछना है, कहाँ पे करना है। तो मैंने कहा सर टॉपिक बताओ, उसने बताया, तो मैंने बस 10 मिनट में ये ग्राफ बना दिया, उसको बोला ये कंप्यूटर है, इस कंट्री में सबसे ज्यादा हुए हैं पेटेंट इस फील्ड में, और इस टेक्नोलॉजी में सब टेक्नोलॉजी में हुए हैं, ये टेक्नोलॉजी में मत काम करो क्योंकि इसमें इनके बहुत काम ऑलरेडी हो चुका है, वहाँ वाइट स्पेस नहीं है, आप उस जगह जाओ जहाँ पर के बहुत कम काम हो चुका है। अब देखो इसमें भी चाइना सबसे ज्यादा है ना, चाइना के बाद यूएस है, एक बार यूएस सबसे पहले था, अब चाइना के ऊपर हो। तो ये किस तरह से हमारे टॉप असाइन किए हैं, किसने सबसे ज्यादा पेटेंट कर रहा है, उसको इतना ही चाहिए सीईओ को 10 मिनट की मीटिंग के लिए, वो मैंने पेटेंट को एक ही पेटेंट पढ़ने की इतना टाइम नहीं होता, उसको बस इसमें टॉप डिसीजन है, स्ट्रेटजी डिसीजन है, उसको स्ट्रेटजी पूछना है, ये टेक्नोलॉजी इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, इसमें वाइट है या नहीं, ईयर वाइज ट्रेंड हमने निकाल के दे दिया, तो पेटेंट लैंडस्केप है। तो आप भी बोल सकते हो पेटेंट वाले बंदे को, अगर आप लीगल वाले हो, कि ये वाले 4
चार्ट निकाल के दो और मुझे निकालना है। ये कुछ टूल्स हैं जो आप पेटेंट सर्च ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हो। मुझे कुछ भी सर्च करना है, हम लोग बहुत ही ब्रिलियंट है, हमारे इनोवेटिव माइंड है, मुझे कुछ भी सर्च करना है, ईवी में देखना चाहता हूँ कौन सबसे ज़्यादा अच्छी कंपनी कर रही है, या मैं मोबाइल में देखना चाहती हूँ, तो मैं इसमें देख सकती हूँ कि किस तरह की टेक्नोलॉजी, किस तरह के पेटेंट है, क्या काम हो रहा है, ले सकते हो। USPTO है, EP स्टेटमेंट है, IPindia.nic.in है, जापानी इसका डेटाबेस है जिससे हम पास होते हैं, और ये कुछ हमारे पेज डेटाबेस है। तो इसमें आप ऑनलाइन आते हो तो गूगल पेटेंट भी है, उसमें भी आप देख सकते हो। गूगल पेटेंट कुछ नहीं, गूगल पेटेंट लिखो, कोई भी अपने नाम लिखो, टेक्नोलॉजी की मैं कुछ देखना चाहती हूँ, उस पर कितने पेटेंट फाइल हुए, रेसिपी देख रहे हैं हम, कुछ भी आजकल DRDO वाले तो हलवा बनाने के पेटेंट फाइल करा रहे हैं। जब मैं थी पिछले एक लॉ फर्म में, हलवा कैसे बनाना है उनको कम टाइम में, क्योंकि वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा वो बर्फीले उसमें रह रहे हैं लोग वहाँ, तो किस टेक्नोलॉजी से बना रहे हैं, कैसे आग जला रहे हैं, तब क्या क्या उन्होंने डाला हुआ, रेसिपी बना रहे हैं जिससे वो कई दिन मतलब वो चले, एक ही बार महीने में टाइम बंदे में बनाने के लिए। तो उस तरह के इन्वेंशंस हैं उसके पास। देखो अब हमारा हो गया पेटेंट फाइल करना। अब पेटेंट हमें करना कैसे फाइल, है ना? तो हमारे 4 जुरिडिक्शन होते हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता। दिल्ली में द्वारका ऑफिस है जो पेटेंट ऑफिस है, वहाँ पर हम पेटेंट फाइल कर सकते हैं। अब तो सब कुछ ऑनलाइन है, तो मैं भी गई तो मुश्किल से 2-3 बार ही वहाँ तक द्वारका, 18 साल में सब कुछ ऑनलाइन होता है। लैपटॉप पे खोलो, क्रेडेंशियल है, उठा के फाइल करो। मैं यहाँ बैठे बैठे अमेरिका के अभी लोग के क्लाइंट्स का काम कर रही हूँ, बैंगलोर का कर रही हूँ, हर जगह कर रही हूँ। तो बट ये जुरिडिक्शन जो है वो यहीं पर जाएगा, मैं जो फाइल करूँगी वही समय से जाएगा। वो डिपेंड कैसे करेगा, क्लाइंट कहाँ का है, ठीक है? क्लाइंट अगर मैं हुआ देखो ये वाला है, मुंबई में जुरिडिक्शन में ये सारे स्टेट्स कवर होंगे। दिल्ली में हमारे होंगे हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू। ऐसा नहीं है दिल्ली मतलब दिल्ली, ये सारे इस जुरिडिक्शन में रहेंगे। रेस्ट ऑफ इंडिया कलकत्ता वाला है तो वो रेस्ट ऑफ इंडिया जाएगा। तो जुरिडिक्शन ऑफ फॉरेन एप्लीकेंट डिपेंड होता है एड्रेस ऑफ सर्विस। अगर कोई फॉरेन है, जैसे मैं बता रही हूँ अमेरिका वाला है, वो मुझे कॉन्टेक्ट करता है तो मैं कहाँ रह रहा हूँ, वो डिपेंड करता है मैं कहाँ पर हूँ। मैं दिल्ली में हूँ तो वो दिल्ली आएगा। अगर वो किसी मुंबई वाला एजेंट को बोलेगा तो मुंबई जाएगा उत्तर प्रदेश। देखो ये हमारी साइट है IPindia.nic.in, इस पे सब कुछ मिलेगा आपको। पेटेंट एक्ट मिलेगा आपको, डिजाइन एक्ट मिलेगा, कॉपीराइट एक्ट मिलेगा, और सारे एक्ट पे अवेलेबल होंगे। तो मैंने जब पेटेंट एजेंट का एग्जाम दिया था नेशनल लेवल, तो मैंने फिर एक्ट यहीं से डाउनलोड किया था। एक्ट एंड रूल्स वगैरह ये हमें पढ़ने पड़ते हैं, जैसे हमारा लीगल है उसी तरह से ये होता है। फिर उसके बाद हमारा जो इसका पेटेंट है, उसको पेटेंट दिखता कैसा है। जैसे अगर हम न्यू है, हमें नहीं पता पेटेंट कैसे पढ़ना है, तो एक मेरे साथ हुआ था, मैं फर्स्ट कंपनी में थी, मैंने इन्वेंटर को पेटेंट पढ़ने दिया, उसने पूरा 1 वीक लगा दिया, और मैं पूछा उसमें है क्या, पढ़ा आपने? तो कहता है मैं तो पढ़ रहा हूँ मैडम, वो 200 पेज का है। मैंने कहा आपको 200 पेज नहीं पढ़ने थे, क्योंकि जो मेन चीज होती है वो हमारी होती है टाइटल, एब्स्ट्रैक्ट एंड क्लेम। उससे हमें बहुत कुछ पता चल जाता है। तो फिर उसमें ठीक से पढ़ के बता दें। उसमें डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, जो पूरी कहानी होती है 200 पेज। उसको अगर किसी को करना ही है रिसर्च तो पढ़ सकता है कि उसको कैसे बना रहे हैं। अदरवाइज आपका जो मेन पार्ट उधर होता है क्लेम, जो कि उसकी बाउंड्री होती है। लीगल सूट्स के लिए जैसे आप लोग जाएंगे, IPR लिटिगेशन, पेटेंट लिटिगेशन एक नया फील्ड है जो अभी रिसर्च कर रहा है। कोर्ट में जो स्टडी होती है तो वो हम क्लेम्स देखते हैं कि बंदे ने क्लेम में करा गया। तो हमारा फील्ड ऑफ इन्वेंशन है, जैसे हमारा सॉफ्टवेयर है, वो ये सारे फील्ड हैं इसके। जैसे टाइटल में क्या है, आप मुझे बोलोगे पेटेंट फाइल करना है, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी जो इनमें जाएंगे कि फील्ड ऑफ इन्वेंशन क्या है, प्रॉब्लम क्या थी आपकी जो आपने सॉल्व करी है। एग्जिस्टिंग में आप पेटेंट लाए हो, इनोवेशन लाए हो, इन्वेंशन लाए हो, तो उसमें क्या आपने सॉल्व की है प्रॉब्लम, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि आप बताओगे लोग पहले ऐसे करते थे, अब जैसे मैंने बल्कि वाला एग्जांपल दिया कि पहले इतना वॉल्यूम घेरते थे, लोगों पे इतना स्पेस की कमी है आजकल, वैसी मतलब कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रही है तो वो स्पेस कंज्यूम कम हो रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यहाँ वॉल स्क्रीन है, स्पेस कम हो गया। अब मुझे इतना टाइम नहीं है कि मैं माउस से काम कर रही हूँ, यही तरफ कर रही हूँ, तो ये टाइम से हो गया। तो ये कुछ एक साइट्स हैं जो हमारी यूजफुल लिंक है, जो हम अलग अलग से यूएस में है, तो USPTO में है, EP स्पेसनेट है, EP का है, और IPindia जो हमारे इंडिया का है। अब पेटेंट कंटिन्यूज, अब पेटेंट हमारा स्टार्ट हो गया। पेटेंट की एक लाइफ साइकिल की तरह कहानी है। कुछ लोग सोचते हैं आज फाइल वगैरह से इन्होंने, फिर उसका क्या होता है, एग्जामिनेशन होता है। जैसे आप लोगों की लॉ की जो नॉलेज है वो बंदा कैसे चेक करेगा कि आपने सब पढ़ लिया, आपको नॉलेज है, वो एग्जाम होता है ना उसका, हम लिख के आते हैं और वही 3 घंटे में वो एक्सेस करता है। जो एग्जामिनर है, जो टीचर है, वो कैसे एक्सेस करते हैं,
क्योंकि जो आपने वहाँ लिखा है, तो इसी तरह से जो हमने पेटेंट में लिखा है वहाँ पर, वो हमने जो एग्जामिनेशन है वो एग्जामिनर पढ़ेगा, उसको रिप्लाई करेगा कि आपके पास में जो पेटेंट से मिलते जुलते हैं, वहाँ यूएस में पेटेंट है, वहाँ ऐसा हो रहा है, चाइना में ऐसा हो रहा है, तो आपका कैसे अलग है वो बताओ। तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर इन्वेंशन। फिर हो सकता है कि कोई कंप्यूटर है, उसे पता चले कि अरे आपका जर्नल में पब्लिश हो गया, यार ये तो मेरा इन्वेंशन है, इसने कैसे पब्लिश कर दिया, मैंने उसने फाइल कर दिया पहले, उसने कंपनी में से बताया कि उस बंदे को हमने बुलाया, वो दूसरी कंपनी की इन्फॉर्मेशन लेके आ गया, उसने पहले पेटेंट फाइल कर दिया, ये भी तो हो सकता है ना। हालांकि इथीकली उसने कहा नहीं था ऐसा, क्योंकि हमारी कंपनी लीगल उसमें काफी इन्फ्लुएंस चलती है कि कोई इन्फ्रिंजमेंट ना रहे, बट वो तो कर सकता है ना। तो किसी ने पहले कर दिया तो इस तरह का कोशिश हो सकती है, या कोई कंपनी है तो हम उसे क्या करेंगे, अपोज करेंगे। अगर ऐसा हुआ कि ये मेरा इन्वेंशन नहीं है, रॉन्गफुल एप्लीकेशन है, तो मैं उसे अपोज करूंगा, प्री ग्रांट अपोजिशन हो जाएगा। फिर उसको फिर पेटेंट ऑफिस एग्जामिन करेगी कि भाई ये सही है कि नहीं है, इसको ग्रांट करना है कि नहीं करना है, या वो बंदा सही कर रहा है जो अपोज कर रहा है वो सही कह रहा है, तो ये इसका है ही नहीं, है ना। या हो सकता है पेटेंटेबल ही नहीं है, गलत उठा के पेटेंट है, या हो सकता है तो बहुत सारे क्राइटेरिया है जिस पर आप अपोज कर सकते हो। उसके बाद क्या होगा, एक हियरिंग भी हो सकती है कि अगर आपने एग्जामिनेशन रिपोर्ट में जो कंप्लाई किया, आपकी जो रेस्पॉन्स आए, फिर उसके बाद वो अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसके बाद हमारा फाइनल ग्रांट होता है। दिस इज दी स्टेज। किसी को अगर फोटो खींचनी है तो खींच सकते हो। पेटेंट की ये आपके जो आने वाला एग्जाम है उसके लिए भी सही रहेगा, जो आईपीआर वाला एग्जाम होगा ना, तो हो गया। तो ठीक है। तो पहले हमारा फाइलिंग हुई, फाइलिंग के बाद हमें एक रफ पेटेंट बना के, मतलब मान लो मेरे को बहुत ज्यादा मुझे लग रहा है मेरा कंप्यूटर पेटेंट फाइल कर सकता है, तो मेरे को आज ही फाइल करो। मैं ऐसी बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है जहाँ मुझे नाइट में भी काम करना पड़ता है 3 बजे तक, क्योंकि अगले दिन एग्जीबिशन है बंदे की, या वो कस्टमर मीटिंग पे जा रहा है, तो उसको वो इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है किसी से, तो क्या करूँगी, क्योंकि वो तो पब्लिक डोमेन में आ जाएगी, तो फिर वो पेटेंटेबल भी नहीं होगा। पब्लिक डोमेन में अगर आ गई कोई चीज, आपने वर्बली किसी को बता दी, तो या तो ये सकता है वही बंदा अगर जिसको बताया वो रिस्क भी है, तो मुझे क्या करना था, प्रोविजनल फाइल कर देती हूँ मैं कि ये राइट अप है, उस पर वो काम कर रहा है, या फिर हो सकता है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन अभी, मतलब मुझे उस पर कंप्लीट उसको डेवलप करनी है, असेंबली लाइन लगानी है, कितने टेम्परेचर पर रखना है मुझे नहीं पता, बस मेरे पास आइडिया है, तो मैं उसे प्रोविजनल फाइल करके उसको ओनरशिप दे दूंगी बंदे को, उसकी प्रायोरिटी दे दूंगी, फिर उसको पब्लिश होगा, फिर एग्जामिनेशन होगी, फिर उसके बाद हियरिंग के बाद फिर ग्रांट होगा, फिर आर मिलेगा। यही इसी तरह का वो हमारे ट्रेडमार्क में भी है, कॉपीराइट में भी है, कि आपने फाइल किया, उसके बाद उसका एग्जामिनेशन होगा, वो कुछ वहाँ से बताएंगे हमको कि इसमें ये गलती है, सपोज फॉर्म पे साइन नहीं करा मैंने आपसे, है ना, जो इन्वेंटर है जो बंदा उसे साइन नहीं कराएगा, हो सकता है कुछ और भी जो उनको कंसर्न होते हैं वो बताते हैं, फिर हम उनको रेस्पॉन्ड करते हैं कि हाँ जो कि क्या होता है, फिर उसके बाद वो होता है। देखो ये फीस है, अगर आपको पता होना चाहिए कि आपको पेटेंट फाइल करना है, कितना कॉस्टली नहीं रहेगा। कंपनीज के लिए 8000 है, तो स्टूडेंट के लिए या हमारे स्टार्टअप या एजुकेशनल के लिए जो इंस्टीट्यूट है, वो सिर्फ फीस जो है वो मोदी गवर्नमेंट जब से आई है वो इनोवेशन आईपीआर को बहुत प्रमोट कर रहे हैं, तो वो चाहते हैं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा फाइल करें पेटेंट। इवन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए काफ़ी पॉलिसीज रिवाइज करी है, जिससे कि स्टूडेंट फाइल करें, फैकल्टी फाइल करें, इवन टारगेट में हमारे जो नेट की रेटिंग्स हैं उसमें वो लोग चाह रहे हैं कि लोग पेटेंट फाइल करें, तो उसके लिए उन्होंने फीस रिवाइज किया है 1600 ओनली। ये भी हाँ फोटो ले सकते हो उसका। फॉर्म 2 जिसमें कि हम पेटेंट फाइल कर रहे हैं, उसमें जो हम पूरा लिख के दे रहे हैं, तो मैंने बताया था टाइटल, क्लेम्स, कंप्लीट कैसे कैसे पूरा उसकी पूरी कहानी लिखना है कि वो प्रोडक्ट तो बन रहा है बट उसके स्टेप्स क्या से बनाने के, तो वो सारा। और अगर हम उसे एग्जामिनेशन फीस फॉर्म 18 दे रहे हैं तो उसकी 4000 है, तो 5600 है सर। मेरी अटॉर्नी की फीस है, मतलब अटॉर्नी जो लिखेगा वो प्रोफेशनल फी अलग है, बट ये गवर्नमेंट फीस ये है, ठीक है। अब मैं ये बोल रही हूँ कि नोवेल्टी क्या है, तो हमने बोला नोवेल्टी है तो पब्लिश नहीं हो चुकी हो गई, किसी ने प्रायर इन्वेंट ना करा हो, क्लेम ना कर रखा हो गई, या वो किसी की नॉलेज में ना हो। जैसे नॉलेज वाले जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, हल्दी का दूध वाला था ना, उसका पेटेंट फाइल हो गया था गलती से पहले कि हल्दी और दादी उसका होता है ना कि बेटा कोल्ड हो रहा है क्या करो कि हल्दी में दूध डालो और पी लो, या किसी का वो क्योर करना है ना, कोई चोट लग गई तो वो हल्दी वाला दूध पी लो, उसका पेटेंट फाइल हो रखा था पहले। तो फिर बाद में उसको इनवैलिडेट करा कि ये पेटेंटेबल है ही नहीं, इसमें कुछ नया इन्वेंशन नहीं है, इन्वेंशन नहीं है, तो वो पब्लिश नहीं होना चाहिए, वो प्रायर नॉलेज में नहीं होनी चाहिए लोगों के, और इस तरह का इन्वेंशन माने इन्वेंटिव
इतना रिसर्च डेटा लगाया, एक्सपेरिमेंटल डेटा लगाया, तो वो एक फीचर होना चाहिए। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस भी हो सकती है कि मान लो मोबाइल पहले महंगा था, यही मोबाइल 10,000 का था, वही फीचर मैंने यहाँ 1,000 का दिया, तो कस्टमर आके किसे खरीदेगा? तो 1,000 वाला 10,000 वाला कौन करेगा खरीदे? जब सेम चीज, तो वो भी हो सकता है। इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस हो सकता है, इन्वेंटरी स्टेप, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो सकती है, और ये सिर्फ प्रोडक्ट पे, प्रोसेस पे ही एप्लीकेबल होता है। हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी बस इतना, इससे आगे नहीं बढ़ाऊंगा। हाँ, ये देखो हम लोग जो काम करते हैं ना, हमारी ये रहता है कि मैंने क्या एब्स्ट्रैक्ट लिखा है, आपने मुझे दिया था कुछ ये है, बट वो मैंने इस एब्स्ट्रैक्ट में नहीं लिखा, मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन में भी नहीं लिखा कहीं, मतलब मान लो एक लाइन में कहीं मैंने घुमा दिया। अब आप बता सकते हो इसका टाइटल क्या है? गैस करो, नो नेगेटिव मार्किंग। आप किधर आ जाओ, वहां से देख नहीं रहा हूँ। बताओ ये किसके बारे में बात कर रहे हैं जो मैंने घुमा दिया है? नहीं नहीं, ये तो मल्टी कलर इमेज फॉर्मिंग एपरेटस है ना, जिसमें इमेज के बारे में बात हो रही है कि वो पढ़ के बताओ। आपने मुझे दिया बट मैंने लिखा नहीं, मैंने ऐसे लिखा है इसको। और गैस करो, बोलना ही तो है। क्या बात है? प्रिंटर जिसमें कि सारी चीजें पेटेंट होंगी, तो मैं ऐसे इतना ठोक रखती थी, ठीक है? और आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको यही बताना है, ठीक है? अब पेटेंट में बता रही थी कि पेटेंट कैन नॉट बी, जो पेटेंट नहीं हो सकता। जैसे आप अगर कहो कि मुझे कोई लिविंग फॉर्म है उसका पेटेंट कराना है, तो वो नहीं होगा। मुझे कोई मेथड मेडिकल ट्रीटमेंट है जैसे कि, तो उसका पेटेंट नहीं होगा। कोई हमारी थ्योरी है, तो थ्योरी है ना, थ्योरी तो नहीं होगी। और कोई डिस्कवरी है, डिस्कवरी और इन्वेंशन में क्या डिफरेंस है? डिस्कवरी इज समथिंग जो एग्जिस्टिंग इन नेचर, मैंने उसको डिस्कवर किया, और इन्वेंशन क्या होता है? जो हमने इन्वेंट किया, तो वो डिस्कवरी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो चीजें हैं जो इन्वेंशन नहीं होना चाहिए, तो मैं ये चेक करती हूँ पेटेंट फाइल करने से पहले कि ये ऐसा इसमें फॉल तो नहीं करता इस सेक्शन में। कॉम्प्लिकेटेड लॉ लैंग्वेज में नहीं बता रही हूँ, मैं सिंपल फॉर्म में बता रही हूँ जिससे कोई भी ग्रैस्प कर पाए। मैंने लॉ की वो इजी मैनर मेरे जैसे कि बात तक ही याद है उस सेक्शन में क्या लिखा है। कल मेरे एग्जाम में तो मैंने एक भी सेक्शन बता सकती है, सारे सही है, क्योंकि मैंने ऐसे ही किया कि किडनैपिंग तो मानेंगे 130 है ना, एडल्शन एंड 130 ऐसे मैंने लिंक किया हुआ। तो मैं ये बता रही थी कि इसमें इन्वेंशन क्या नहीं है। तो 3A में क्या बता रहे हैं कि कुछ फ्रॉडुलेंस इन्वेंशन नहीं होना चाहिए, माने तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, बेकार कुछ भी इन्वेंशन हो रहा है जो कॉन्ट्ररी है, सॉल्ट एस्टर ये सब नहीं होनी चाहिए, या उसकी एफिकेसी नहीं होनी चाहिए। तो ये केमिकल कंपोजिशन का था। अब व्हाट इज नॉट पेटेंटेबल? पेटेंटेबल क्या नहीं है? मान लो एक मैं आयुर्वेदिक कॉम्बिनेशन होते हैं ना, जिसमें मैंने वो क्या करते हैं आयुर्वेदिक चीज अश्वगंधा, आंवला, नहीं वो जो बंदा करता है वो, अरे जो बैठते हैं आयुर्वेदिक डॉक्टर लोग बोलते हैं ना वो होम्योपैथ, वैद्य क्या करते हैं, 4 वाटर मिला के देते हैं कि बेटा ये आप खा लो, अच्छा ठीक है। तो वो उस तरह के जो एडमिक्सचर होते हैं जो मिलाए हैं उन्होंने, वो पेटेंटेबल नहीं है एडमिक्सचर। और अगला क्या है? वेयर अरेंजमेंट और रीअरेंजमेंट ऑफ अ नोन डिवाइस। इसे कैसे समझोगे? एक पंखा लिया, उसमें लाइट भी लगा दी, अब मैं एक डिवाइस लेकर आई हूँ और मैं बोल रही हूँ इसमें लाइट भी है, अंधेरे में लाइट भी दिखेगी और हवा भी आएगी, तो आएगी ना वो, तो उसमें तुमने क्या करा? तो वेयर अरेंजमेंट करा आपने या वेयर रीअरेंजमेंट करा, ठीक है? नोन डिवाइस थे, उनका आपने इंडिपेंडेंटली काम कर रहे थे वो, और आपने सिर्फ जोड़ दी। लॉ में तो हमारे एग्जांपल और इलस्ट्रेशन यही चलते हैं ना, तो मैं उस तरह से नहीं कर रही। अगला जी नहीं है। आई में क्या है? कोई प्रोसेस है, मेडिसिनल, सर्जिकल, क्यूरेटिव, डायग्नोस्टिक थेरेपी, जो एक्सरे मेथड और ये सब जो होते हैं वो यहाँ पर नहीं पेटेंटेबल है, क्योंकि वो मेडिसिनल में जा रहा है, सर्जरी करने के उसमें, तो वो सारी चीजें क्योंकि ह्यूमन ट्रीटमेंट से रिलेटेड है, तो इसलिए पेटेंटेबल है। इन्वेंशंस है, मतलब उसको पेटेंट नहीं कर सकते। प्लांट एंड एनिमल्स इन होल, कोई कहे मैंने नया प्लांट बनाया है, कोई कहे मुझे यार डॉग का करना है पेटेंट, तो डॉग तो है ही ना, रोड पे घूम ही रहे हैं ना, क्या करोगे उसमें
वो सब पेटेंटेबल नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सीड्स हैं, वैरायटीज हैं, प्लांट के, इसके लिए एक लॉजिक आ रहा है कि हमारा एक अलग से वर्टिकल है प्लांट वैरायटी है, तो ये सब उसमें कवर होता है। अगला है मैथमेटिकल बिजनेस मेथड, कंप्यूटर प्रोग्राम, पर्से और एल्गोरिथम। ये क्यों पेटेंटेबल नहीं बताओ क्या? ये चीजें अगर मेरे पास कोई लेके आता है ना, बिजनेस मेथड, मैथमेटिकल, कंप्यूटर प्रोग्राम पढ़ते, ये पेटेंटेबल नहीं है। क्यों नहीं? इसके बिना काम ही नहीं होगा। और बताओ, क्योंकि कॉपीराइट पे जाता है ना, इसके लिए वहाँ वर्टिकल है। हमारे लॉ में नहीं होता कि लोकल एक्ट में जा रहा है, ये डॉरी एक्ट में जाएगा, ये वहाँ जाएगा, इसी तरह से ये चीज वहाँ जाती है, दूसरे वर्टिकल में जाएगी। तो ये लिटरेसी, ड्रामेटिकल, म्यूजिकल, आर्टिस्टिक वर्क भी इसलिए पेटेंटेबल नहीं, क्योंकि ये कॉपीराइट में जाता है। अगला मेयर स्कीम ऑफ रूल, मेथड ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट, जैसे हमारा कसिनो का मेथड ऑफ प्लेइंग गेम्स, ये पेटेंटेबल नहीं, क्योंकि ये फिर इसको कोई भी आ जाएगा कि मैं अलग से ये बता रहा हूँ कि इस तरह से मैं खेल रहे हैं, तो कसिनो तो उठ जाएगा, कोई भी पढ़ लेगा उसको पेटेंटेबल की कैसे हो रहा है। टोपोग्राफी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, क्योंकि हमारा वहाँ पे भी एक लोकल है सेमी सर्किट, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, और ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो मैं बता रही थी, दादी नुस्खा, हल्दी वाला, ये पेटेंटेबल। तो एक लॉजिक है सब चीज। अब हमारा पीसीटी क्या है, वो मैंने बताया आपको कि मुझे यहाँ बैठ के इंडिया में बहुत सारे जुरिडिक्शंस हैं, मुझे यूएस में भी करना है, मुझे जापान में भी करना है, चाइना में भी करना है, बहुत जगह करना है। अब इतनी दिन में बहुत टाइम जाएगा, तो टाइम की यहाँ पर 31 मंथ्स एक मुझे एडिशनल मिल जाता है कि मैं एक्सेस करता हूँ कि हाँ सही में, क्योंकि वहाँ पे बहुत लाखों में कहानी स्टार्ट हो जाएगी, है ना। यूएस में 1.5 लाख में होता है, चाइना में अलग होगा, तो मुझे थोड़ा टाइम भी मिल जाएगा। और मुझे ये ट्रीटी है, एक प्लेटफॉर्म है, जिससे कि आप कई कंट्रीज में फाइल कर पाओ। सिंपल लैंग्वेज में बताना, ठीक है ना, सिंपल लैंग्वेज में बुक में पढ़ के और वो पेटेंट एक्ट पढ़ो और वो सब वैसा कोशिश करा कि कोई सिंपल बता। आजकल यूट्यूब बहुत हेल्पफुल है एलएलबी में, है ना, आप जो यूज करते हो ना यूट्यूब में जो लोग बताते हैं सिंपल टर्म में, तो वही ये सिंपल टर्म है कि पीसीटी में हम क्या करते हैं कि एक प्लेटफॉर्म मिला कि आपको बहुत सारी कंट्रीज में फाइल करने में एक सिंपल पेटेंट एप्लीकेशन है जो कि आपको हेल्प करेगा बहुत सारी कंट्रीज में प्रोटेक्ट करने के लिए। ग्रांट नहीं मिलती है क्योंकि कंट्री नहीं है, इट्स अ प्लेटफॉर्म। तो हम पीसीटी को हम फाइल कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिस है वाइको जेनेवा में है, इंटरनेशनल ब्यूरो में, वहाँ से भी मैंने कुछ कोर्सेज किए थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से भी आईपीआर में, तो वहाँ से भी हम कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर कोर्सेज करना हो, मैं वहाँ पे पहुँची गई हूँ, तो आईपीआर में अगर आपको आउट ऑफ इंटरेस्ट करना है, आपको आईपी नॉलेज बढ़ानी है, सपोज किसी ने बोला कि मुझे लॉ में आईपी में ही जाना है, फिर लोग इंस्पायर हो जाते हैं एक दूसरे से, तो आप वहाँ से भी कोर्स करते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, वाइको में पीसीटी में है, तो वहाँ के कोर्स की अलग वैल्यू भी हो जाती है, उससे बड़ा तो कुछ है ही नहीं ग्लोबल। तो उन्होंने मुझे काफी अवार्ड दिए हैं। The applicant can claim the date of filing is priority, जो दूसरी कंट्री में है। अब मैं इंडिया में आज पेटेंट फाइल कर रही हूँ, ठीक है, और वही प्रायोरिटी डेट से आज की डेट से मैं अगर 2 साल बाद भी पेटेंट फाइल कर रही हूँ चाइना में, 4 साल बाद भी कर रही हूँ, वो यहाँ की डेट से काउंट होगा, पहली वाली डेट से। ये बोलिए, तो ये पूरा चार्ट है। वाइको में पहले मैंने अपना इंडिया में फाइल करा प्रायोरिटी डेट सबसे पहले यहाँ, फिर उसके बाद मैंने पीसीटी में करा जो मुझे 12 मार्क्स में करना है, फिर उसके बाद उसका एक इंटरनेशनल सर्च रिपोर्ट आएगी, पब्लिकेशन पब्लिश होगा, पहले एग्जामिनेशन होगा, और यहाँ पर हमें ये विद इन 30 मंथ्स में दूसरी कंट्री में उसको फाइल करना है। तो ये पूरा स्टेज है वाइको। अब हमारी सिग्निफिकेंस में आईपीआर का क्यों हम कर रहे हैं लेक्चर में, हमारे लिए क्या बेनिफिट है, पता है हमें क्यों लेक्चर पढ़ा रहे हो, हिस्ट्री पढ़ाते हैं मुझसे, हमें क्या मतलब, हम क्यों पढ़े हैं। तो आप इसलिए पढ़ रहे हो कि आप अपने नेबर को, अपने रिलेटिव को, आपके नोन बंदे को आईपीआर एज करियर ऑप्शन लगा सकते हो कि लॉट ऑफ ग्रोथ है, स्काई हायर लिमिट, कोई सैलरी ग्रोथ कॉर्पोरेट्स में जाना है, मुझे सैलरी, मेरा लास्ट सैलरी 35 लाख था जब मैंने स्विच किया था अपनी लॉ फर्म से पहले। तो आईपीआर में भी बहुत करियर है। लीगल एडवाइजर भी अगर आप बन रहे हो ना कॉर्पोरेट में, मेरे साथ ही लीगल एडवाइजर भी था, उसका भी लीगल में भी जा सकते हो, आईपीआर में भी जा सकते हो, तो करियर ऑप्शन है। दूसरा अपना सीईओ उठा के, तो सबसे पहले कोई भी उसका प्रोजेक्ट होता है मुझे याद करता था, क्योंकि उसको प्लान सेट करना है अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस के, तो उसे ये पूछना है कि यहाँ पे मेरे पर कोई सूट तो नहीं करेगा, कोई दूसरी वाला कंपनी आके मुझे बोलेगा तो नहीं कि तुम इंफ्रिंज कर रहे हो, तो मुझे सेफली प्ले करना है। मैं उसको बोलती हूँ रन सेफ, प्ले सेफ एंड ऑन सेफ, ये मेरा वर्ड है, तो मैंने कहीं पीछे स्लाइड में लिखा भी होगा कि आप सेफली प्ले करो। तो इसलिए आप ये देखिए आईपीआर क्लियरेंस बोलते हैं, उससे भी होती से
तो IPR क्लियरेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको अगर किसी भी कंपनी में जा रहे हो, आपने कुछ स्टार्टअप बना रहे हो, आप इनोवेटर हो, तो आपको IPR कैसे कैसे एडवांटेज हो सकता है, इसलिए आपको इंस्टीट्यूट यहाँ पे ट्रेनिंग जिससे आप यूज कर सको। और लॉयर्स के लिए वैसे एक सब्जेक्ट में पार्ट भी नहीं करिकुलम। अब आप जब पढ़ोगे ना उसको, जो 6th सेमेस्टर में जाएंगे तो आपको 8th में जो भी पार्ट है, तो आपको ये चीजें बहुत हेल्पफुल रहेगी। PPT भी आप मैम से ले लेना, शेयर करके आप ये पढ़ लोगे ना PPT, काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और नहीं तो फिर मैं दोबारा आ जाऊंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। देखो IPR में यूनिवर्सिटी, पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट में सब जगह एक करिकुलम का पार्ट है जो लॉ नहीं कर रहे। हमारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, वो सब हमारे इवन जो स्टूडेंट के लिए ना एक नानी करके IP नानी और वो सब हमारे IP वेबसाइट पे भी है, जो हम छोटे छोटे बच्चों को दिखा सकते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग इतने ब्रिलियंट हो। मेरे पास जो पेटेंट फाइल करे ना 6th क्लास के बच्चे ने करे, 9th क्लास के बच्चे ने करे। उसमें पूरा मुझे प्रोजेक्ट थे, उनके प्रोजेक्ट बता दिया उसमें कैसे है। तो आप लोग तो कितना ही कर सकते हैं इन्वेंशन में। और एक दिन में कहानी बदल जाती है। वो कैसे 12th का एक बच्चा था, उसने पेटेंट फाइल करा, उसका पब्लिश हो गया। उसको एक बहुत बड़ी MNC थी, फार्मा कंपनी, उसने अप्रोच किया और उसको करोड़ों में पैसे दिए कि तुम ये पेटेंट बेटा हमें दे दो। तो उसके पेरेंट्स ने बोला कि नहीं हम स्टार्टअप करेंगे, और वो भी चलेगा, वो मैंने फाइल किया। तो वही है कि एक दिन में कहानी बदल गई कि उसने पेटेंट फाइल करा, उसका प्रोजेक्ट उनको इतना अच्छा लगा। उसका इरिगेशन भी बता देंगे, कुछ इरिगेशन का बता कि वो इरिगेशन कैसे कर रहे हैं फार्मर्स के लिए और उसके लिए। तो वो सब द सिग्निफिकेंस ऑफ IPR इज इन हायर एजुकेशन बहुत रिकॉग्नाइज करी गई है। नेशनल IPR पॉलिसी आई है सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में, क्योंकि हम लोग कर रहे हैं IP और हमें पता ही नहीं है, अवेयरनेस सेशंस ही नहीं हुए हैं। स्टूडेंट कर रहे होते थे, फैकल्टी कर रही होती थी, और आप लोगों को भी बहुत चीजें आप कर रहे होते थे, बट आपको पता ही नहीं था कि IPR की क्या होगा। तो जैसे मैंने बोला कि रजिस्ट्री कराओ प्लॉट से पहले, तो इसी तरह से हमें IPR कैसे हेल्पफुल है डेली लाइफ में, MBA स्टूडेंट में जब हम जॉब करेंगे तो हमें कैसे एडवांटेज मिलेगी, इस सेशन में मुझे वही है। तो हमारा जो प्राइमरी फोकस है पॉलिसी को हायर एजुकेशन में देना। UGC में इलेक्टिव सब्जेक्ट भी होता है, उसके रैंकिंग भी होता है। आपका हमारा नैक रैंकिंग हर जगह ये देखते हैं। इंस्टीट्यूट भी जो है कितने पेटेंट फाइल कर रहे हैं वो भी हो गया इसमें। तो पब्लिकेशन एंड पेटेंट एप्लीकेशन है, और IPR अवेयरनेस स्कूल में हर जगह दी जा रही है इसीलिए। और IPR वर्किंग प्रोफेशन के लिए रिसर्च में, इनोवेशन में काफी हेल्पफुल रहता है। And it is for the business and it is for the marketplace. So अगर हम ये पढ़ते हैं, अभी कितना टाइम है? कोई नहीं, मैं आप कंटिन्यू रखो, अच्छा लग रहा है। नहीं, वो टाइम लिमिट दूसरी है। ओके। मैं स्पीकर हूँ ना, इसलिए स्पीकर में हर एक यूनिवर्सिटी में जा सकती हूँ, जो भी आप बोलोगे ना पार्ट करो उसके हर जगह। तो मुझे मैं कंटिन्यूअसली रेफर हो ना हो उसकी पीटीए में नहीं मैं बोलती हूँ। तो मुझे टाइम लिमिट थोड़ा सा देखना पड़ता है। कितनी देर में? 10 minutes. 10 मिनट। तो हमें जो R&D इनोवेशन और पेटेंट में लिंक होता है, तो जैसे कि हम इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल डेवलपमेंट हमारे कहना है, इनोवेशन क्यों मोदी इतना ज़्यादा वो दे रहे हैं, मतलब हमारे IP में सोसाइटी में जो मैं जिनकी मेंबर हूँ, बहुत सारी सोसाइटी से लिंक हूँ, तो उनके साथ भी मीटिंग हो चुकी है। तो वो चाहते हैं हमारी इंडियन इकोनॉमी बूस्ट हो। अब वो कैसे बूस्ट होगी, जब लोग इनोवेशन करेंगे, है ना। हम कंपटीशन में आ रहे हैं, हम वो क्या है विकसित भारत, है ना। तो वो कैसे होगा जब इकोनॉमी बढ़ेगी। इकोनॉमी कैसे बढ़ेगी, जब हमारा इनोवेशन बढ़ेगा कंट्री। तो इनोवेशन को बूस्ट करना है, IP को बूस्ट करना है। उन्होंने कितने 40th नेशन में इनकी रैंकिंग आई थी इंडिया की, और काफी मतलब ये जो फी कम करी है और सारे जो इनिशिएटिव है वो इसीलिए है कि लोग ज़्यादा पेटेंट फाइल करें। तो इकोनॉमिक एडवांटेज है, टेक्निकल इनोवेशन एंड सोशल एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस जो हमारे हैं। पब्लिक R&D बढ़ेगी, बूस्ट होगी। अब इवन मोदी गवर्नमेंट ने इंडियन पेटेंट ऑफिस में अवार्ड दिए हैं, जैसे अमेठी को भी अवार्ड मिला था कि उन्होंने मैक्सिमम पेटेंट फाइल करे हैं। स्कूल को, अमेठी स्कूल को भी मिला है क्योंकि स्टूडेंट ने पेटेंट फाइल करे हैं ऐसे। तो लवली प्रोफेशन को मिला कि उन्होंने मैक्सिमम पेटेंट उनका नाम था रैंकिंग में। तो इस तरह से गवर्नमेंट लैक्स मतलब 1 लाख अवार्ड, 1 लाख कैश का अवार्ड दे रही है, 2 लाख कैश का अवार्ड दे रही है कि जिसने सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइल करें। ये एनुअली मिलते हैं और कॉर्पोरेट्स को भी मिलते हैं, इंडिविजुअल को भी मिलते हैं। तो उस तरह से ये बूस्ट कर रहे हैं जिससे हमारा टेक्निकल, कमर्शियल, लीगल इंफॉर्मेशन बूस्ट हो जाए। स्टार्टअप
मैं स्टार्टअप करना चाहती हूँ, तो पेटेंट कैसे हेल्पफुल रहेगा? एक तो मेरा स्टार्टअप का जो ब्रांड बन रहा है, लोगो बन रहा है, कुछ भी जो आपका नाम है, आपका मदर का नाम, पेरेंट्स का नाम लिख के या कुछ कर सकते हो, तो वो स्टार्टअप के लिए गेम चेंजर होगा। प्लस वेब टेक्नोलॉजी से वो बच्चा रहा जो मेरा मुझे पता है इरिगेशन वाला मेथड था, उसने स्टार्टअप लगाई है, तो उसने वो पहले पेटेंट फाइल कर टेक्निकल थे, तो वो पूछा ठीक है मैं ये प्रोडक्ट आपसे ले लूँगा, पर कल को मैं किसी इन्वेस्टमेंट ग्रुप में नहीं पढ़ना चाहता, कोई आगे बोले कि तो इनका नहीं था, इनका मेरा है, तो फिर लड़ाई होगी ना, लिटिगेशन होगा। तो वो पहले पूछता था कि मुझे बताओ आपने पेटेंट फाइल करा है कि नहीं करा, ठीक है? तो वो चीज़ भी होती है कि हमारा यूनिकनेस कैसे है, वो उसका होता है ना, एक ISO होता है। जैसे हम प्रेस खरीदते हैं मार्केट से, तो हम देखते हैं कि इसमें ISO है कि नहीं, जिससे कि ठीक है ऐसा ना मैं कर रही हूँ सब जल जाए। इसी तरह से वो प्रोडक्ट अगर ले रहे हैं तो उसकी ऑथेंटिसिटी जो आती है वो पेटेंट से आती है। तो आप लोग भी देख सकते हो आजकल तो हर मतलब कई प्रोडक्ट हम खरीदते हैं ना, जो उस पर लिखा होता है पेटेंटेड करके भी लिखा होता है। ट्रेडमार्क पे TM लगा देते हैं, जिससे कि लोगों को पता रहे कि ये ट्रेडमार्क फाइल हो चुका है, इसको यूज मत करो। कोई वार्निंग है दूसरे के लिए कि आप उसको यूज मत करो विदाउट हिज कंसेंट। तो ये स्टार्टअप स्कीम में हमारे SIPP है, इसमें के फैसिलिटेटर्स होते हैं, फैसिलिटेटर भी, तो उसमें ये रहता है कि जो फीस है वो ऑफिशियल फी, जो गवर्नमेंट फीस है वो आप दोगे, बाकी सारी जो है हम आपसे कोई फी नहीं लेंगे। जैसे उसमें 5,600 बताया था, वो सिर्फ हम उतना ही लेंगे, बाकी हम जो है गवर्नमेंट से क्लेम करेंगे। तो वो SIPP है, मतलब ये मैं टेक्निकल में नहीं जाती। Having a patent is of most importance for the inventor. इन्वेंटर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। स्टार्टअप्स के लिए अगर उन्हें ग्रो करनी है तो वो ग्रो कैसे होगा कि उसे अपना नाम हर जगह बता देना है। तो इस स्टार्टअप का नाम हर जगह आ जाएगा कि उसने इतने पेटेंट फाइल कर रहे हैं, ट्रेडमार्क का बंदा काम कर रहा है, तभी उसने मतलब बता दी सैमसंग को कह रहे हैं तो वो पेटेंट फाइल कर रहे हैं, तो इसीलिए क्योंकि वो कर रहे हैं, नाम कर रहा है। तो IPR करियर ऑप्शन अगर आप देखना चाहते हो तो बहुत सारी MNCs हैं जो IT के लिए मतलब जॉब्स निकलती रहती हैं। कॉर्पोरेट में आप कर सकते हो इन हाउस IT टीम, जैसे मैं थी बीकॉम मूविंग इवन इन कोविड। हाँ, तो मुझे जो है कोविड में लोगों की जॉब छूट रही थी तो मुझे मिली थी कोविड में, एक दूसरी जगह मैंने स्विच किया क्योंकि 2 जगह से ऑफर तो ऐसा था उस टाइम में था। प्रोफेसर IT फैकल्टी यूनिवर्सिटी में IP कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, हमारे इनोवेशन सेल्स होते हैं, एक IP हेड रख देते हैं, वो भी है। इन हाउस यूनिवर्सिटी फाइलिंग जैसे चंडीगढ़ में यहाँ भी कर देते हैं, हमारे यूनिवर्सिटी में अलग से इन हाउस सेल बना देते हैं, वहाँ 3-4 लोग बैठे होते हैं। IP लॉयर कोर्ट में आप जो आप लीगल आप जा सकते हो, IP को एज अ करियर भी चूज कर सकते हो। मुझे IP लिटिगेशन करनी है। पेटेंट एजेंट ट्रेडमार्क एजेंट जो मैं हूँ, कॉपीराइट प्रैक्टिशनर, पेटेंट एनालिस्ट जो बहुत बड़ी MNCs होती हैं जैसे WNS ग्लोबल और बहुत सारी E-वैल्यू सर्व हैं, और वो लोग जो है वहाँ पर पेटेंट सब चीज़ ही करते हैं। उनके इंटरनेशनल क्लाइंट हैं जो R&D को हेड करते हैं और वो R&D को सिर्फ हेल्प कर लेते हैं कि R&D कोई डिसीजन लेनी है, रिसर्च करनी है तो पेटेंट से एक्सट्रैक्ट मिल जाता है आपको। पेटेंट ड्राफ्टर हो सकते हो, जो पेटेंट लिखना है पूरा 100 पेजेस का, वो कैसे लिखना है। आप लाइसेंस कर सकते हो, आपको किसी कंपनी कुछ मत करो, आपको कुछ नहीं करना, मेरे में टेक्निकल माइंड भी नहीं है, मुझे बस इस पर बिजनेस करना है। कुछ होते हैं ना कि हाँ भाई बनिया टाइप जो बोलते हैं, मुझे मतलब नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ लाइसेंस ले लेगा जिस बंदे ने टेक्निकल पेटेंट फाइल करा। एक दो बंदे मेरे पास ऐसे क्या है, मैडम मुझे बता दो इस बंदे ने किस बंदे ने पेटेंट फाइल करा है, मैं इससे खरीद दूंगा, मुझे इस पर काम है बस। तो वो भी आप कर सकते हो, लाइसेंसिंग स्पेशलिस्ट आप गाइड कर सकते हो। और इसमें जो मैगजीन्स है, अगर आपको मैगजीन में आर्टिकल कुछ लिखना है, मैंने भी लिखे आर्टिकल पब्लिश भी है मेरे इंटरनेशनल मैगजीन्स में, तो वो आप अपने थॉट्स लिख सकते हो कि IP पॉलिसी ऐसी है। हम बोलते हैं ना LLB में तो सिर्फ आपको लॉ की नॉलेज होती है, बट जब आप LLM करते हो तो उसको लॉ को इंटरप्रेट करते हो, आप बताते हो कि ये चीज़ ऐसे होगी, तो वो आप चीज़ें लिख सकते हो, अपने थॉट्स दे सकते हो। इसी तरह से इन मैगजीन में भी आप दे सकते हो अपने जो भी थॉट्स हैं, लीगल मैगजीन में दे सकते हो। आप IP ट्रेनर बन सकते हो, पेटेंट एजेंट एग्जामिनेशन होता है, जैसे IP कॉन्फ्रेंस कोऑर्डिनेटर, ये जो है जैसे ये कोऑर्डिनेटर्स होते हैं जिसमें मैं जाती हूँ, तो वो लोग मुझे कॉल करते हैं कि आप इस कॉन्फ्रेंस में अदर स्पीकर बनकर हो, तो वो आप कोऑर्डिनेटर का रोल भी कर सकते हो। उसको कितना मिलेगा, लेक्चर आप लेक्चर दे रहा है IP, तो उसको कितना मिलेगा, जर्नलिस्ट को कितना मिलेगा, ये सारी और वैरी कर सकती है। कोर्सेज किसी को करना है तो यहाँ से कर सकते हैं, PY को, नेशनल लॉ स्कूल, और यहाँ से आप कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट भी। मैं ऐसे स्ट्रीम में पूरी DST मिनिस्ट्री ऑफ साइंस से, जहाँ पर केवल वुमेन्स के लिए, साइंस के लिए नहीं है ये वाली स्ट्रीम, तो इसमें आप फ्री ऑफ कॉस्ट एग्जाम क्वालिफाई करो, रिटिन वाइवा दो, वहाँ पर आपको किरण IPR में मिल जाएगा, तो इसकी भी काफ़ी वैल्यू रहती है।
these are all. Thank you to everyone for Thank you, ma'am, for guiding us through the fundamentals of intellectual property rights. Your session helped us understand how ideas can be legally protected, so approachable for us. To formally express our gratitude, I now invite Dr. Arpita Sehgal to thank ma'am with a small token of gratitude from our institution. As we conclude today's session, let us carry forward the importance of respecting and protecting intellectual creations in our professional journeys. Even small, informed steps towards safeguarding ideas can create a lasting impact when guided by innovation, responsibility, and ethical practice. Thank you all for your enthusiastic participation, and a special note of gratitude